Hello everyone, welcome to class 9 biology. Dear students, in previous video we had learned about the plasma membrane. We were learning the structural organization of the cell, and in that structural organization of the cell, dear students, we had learned about the plasma membrane. What is plasma membrane? What are the different functions of the plasma membrane? How molecules transfer across the membrane? Then we had learned two different processes, that is diffusion, osmosis. Then we had learned three different types of solutions: hypertonic solutions, hypotonic solutions, isotonic solution. Now in today's video, dear students, we are going to learn about the next structural organization, that is cell wall and nucleus. Then also we are going to start cell organelles, that which are the different organelles are present inside the cytoplasm of the cell, and one of the cell organelle we learn today, that is endoplasmic reticulum. So let's begin it, dear students. So first of all, we are discussing about the cell wall. So one thing you should have to be remember, students, that cell wall is only present in plant cell. Cell wall सिर्फ plant cell में ही present होता है. It is not present in animal cell. But yes, cell wall present in plant cell as well as few bacterial cells also having the cell wall, and fungal cells के पास भी cell wall present होती है. So remember, plant cell, bacterial cell and fungus cells, they contain cell wall, whereas animal cells do not have the cell wall. Okay, now you can see over here in this image, dear students, that सेल वॉल आप लोगों को दिख रही है, येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है इन दिस इमेज. अ नॉर्मल प्लांट सेल इज गिवन टू यू. जो बाहर का एरिया है, द आउटर कवरिंग, दैट इज़ व्हाट सेल वॉल, और जो अंदर का है, दैट इज़ व्हाट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और वी कैन से द सेल मेम्ब्रेन, एंड रिमेनिंग अनदर सेल ऑर्गेनल्स आर गिवन टू यू. So it is written over here that cell wall is rigid. Rigid means it is very tough, which cannot be bent, which is not flexible. It is rigid, semi-elastic, semi-transparent and protective covering present outside the plasma membrane in plant cell, fungi and prokaryotic organisms that I told you now right now, that is bacterial cells. So getting dear students, सेल वॉल क्या होती है, आउटर कवरिंग में होती है. मीन्स अगर सेल की बात करें तो सबसे पहला आता है सेल वॉल, उसके अंदर आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फिर साइटोप्लाज्म के अंदर बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स. नाउ सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ व्हाट? सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? सो इट इज़ मेड अप विथ सेल्यूलोज इन प्लांट्स. इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज इज़ अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. सेल्यूलोज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है. सो जो प्लांट सेल की सेल वॉल है, इट इज़ मेड अप विद द सेल्यूलोज, एंड फंगल प्लांट एंड फंगल सेल वॉल इज़ मेड अप विद द काइटिन. फंगल जो सेल है, इट इज़ मेड अप विद द काइटिन. You can see over here, dear students, chitin. ओके, तो जो फंगस की सेल वॉल है वो काइटिन से बनी हुई होती है, और जो प्लांट की सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बनी हुई होती है. गेटिंग एवरीवन? ओके, नाउ वी आर मूविंग फर्दर. That is functions. What are the functions of the cell wall? Cell wall के functions क्या है? So first है, it provides shape to the cell. The first function is it provides shape to the cell. It provides shape to the cell. Second function है, it provides mechanical strength to the cell. Mechanical strength का मतलब क्या है? To withstand with the heavy wind or heavy rainfall. ठीक है, सेल्स को वो एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. कौन? सेल वॉल. इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट पैथोजेंस एंड मैकेनिकल इंजरी. पैथोजेंस हियर सम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इफ ट्राई टू एंटर इनसाइड द प्लांट सेल, तो ये सेल वॉल क्या करेगी? इसको रोकेगी, पैथोजेंस को स्टॉप करेगी. देन ग्रोथ ऑफ द सेल वॉल डिटरमाइंस द ग्रोथ ऑफ सेल्स. ग्रोथ ऑफ द सेल वॉल जो है वो डिटरमाइन करेगी कि सेल का ग्रोथ कैसा हो रहा है. एंड सेल वॉल प्रिवेंट्स बर्स्टिंग ऑफ सेल ऑन एंडोऑस्मोसिस.
दैट वन ऑफ द प्रोसेस दैट वी हैड डिस्कस अबाउट द प्लाज्मोलिसिस. हमने प्लाज्मोलिसिस डिस्कस किया था डियर स्टूडेंट्स, दैट इफ़ वी आर कीपिंग अ सेल इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन के अंदर अगर हम हमारे प्लांट सेल को रखते हैं कि जिससे क्या होता है, इनसाइड द प्लांट सेल वाटर कंसंट्रेशन इज हाई एंड आउटसाइड द प्लांट सेल वाटर कंसंट्रेशन इज लो. सो एज विद द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, पानी क्या होगा, द वाटर विल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. तो पानी सेल के अंदर से सेल के बाहर जाएगा. अब जैसे ही पानी सेल के अंदर से सेल के बाहर जाएगा, प्लांट का जो साइटोप्लाज्म है वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगा. बट ड्यू टू द सेल वॉल, उसके सेल वॉल में कोई इफेक्ट नहीं आएगी, सिर्फ उसका साइटोप्लाज्म ही क्या होगा, श्रिंक होगा. उसके अदर हैंड अगर हम बैक्टीरियल सेल वॉल की बात करें, सो यू ऑल आर नोइंग वाटर बलून्स. ठीक है, जब भी आप वाटर बलून के अंदर पानी भरते हैं, पानी ऐड करते हैं, तो क्या होता है, उसकी एक कैपेसिटी होती है वाटर बलून की. अगर आप कंटिन्यूसली उसके अंदर पानी ऐड करते जा रहे हो तो आपका वाटर बलून जो है ना बर्स्ट हो जाएगा, वो फूट जाएगा. जबकि बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल क्या करती है, अगर बैक्टीरियल सेल ऐसे मीडियम के है, हाइपोटोनिक मीडियम के अंदर है, तो बैक्टीरियल सेल के अंदर पानी ऐड होगा. पानी ऐड होते होते बैक्टीरियल सेल क्या हो जाएगा, स्वॉलन अप हो जाएगा. लेकिन उसकी जो सेल वॉल है वो उसको हेल्प करेगी कि बैक्टीरियल सेल फूट ना जाए, बैक्टीरियल सेल बर्स्ट ना हो जाए. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल. Moving further, we are talking about the next structural organization, that is nucleus. What is nucleus? That nucleus is a dense protoplasmic body that contains hereditary information present in the cell. सेल के अंदर जितनी भी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन दैट द इन्फॉर्मेशन विच ट्रांसफर विच कैरीज फ्रॉम द पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन, इट जनरली लाइज इन अ सेंट्रल पोजीशन. न्यूक्लियस जो है वो हमेशा सेंटर पोजीशन में प्रेजेंट होता है. एंड इन प्लांट्स इट लाइज टूवर्ड्स पेरीफेरी. यहाँ पर डिफरेंस है, न्यूक्लियस प्लांट सेल के अंदर थोड़ा पेरीफेरी मीन्स थोड़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास थोड़ा आउटसाइड पर होता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर वो बिल्कुल सेंटर में होता है. नाउ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. यू कैन सी ओवर हियर न्यूक्लियस, येलो कलर आई हैव हाईलाइटेड, इट इज़ सेंटर इन द सेल. जो न्यूक्लियस है हमारा कहाँ पर है, सेंटर के है, सेल के सेंटर में है. अब न्यूक्लियस को जो है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. उसे कंट्रोल सेंटर क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, ऑल द केमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल. इट डायरेक्ट्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल. वो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को डायरेक्शन देता है. नेक्स्ट क्या होगा, कौन सी चीज़ सिंथेसाइज होगी, वो सारी चीज़ कहाँ पे डिसाइड होती है, न्यूक्लियस में. एंड दैट इज़ वाई न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. Nucleus contains genetic material and that genetic material is called as chromosome, which will have DNA, that is deoxyribonucleic acid. Nucleus के पास जो genetic material present है, that genetic material is called as chromatin material, or we can say it is chromosomes, or chromosomes are made up of what? Chromosomes are made up of DNA and protein. Okay, next. Function, control center, it regulates DNA and RNA action as we had discussed now. Now we are talking about the structure of nucleus, कि nucleus के अंदर क्या क्या चीज़ें present होती हैं. So nuclear envelope, first of all it is given over here. इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियर एनवलप. जो बाहर का एरिया है, द आउटसाइड न्यूक्लियस के बाहर का जो एरिया है, दैट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियर एनवलप, और वी कैन से इट इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है न्यूक्लियस को अच्छे से शेप में कवर करके रखना. सेकेंडली यू कैन सी द येलो कलर पोर्शंस ओवर हियर ऑन द सर्फेस ऑफ द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के सरफेस के ऊपर आपको येलो कलर फ्लावर जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं. दे आर एक्चुअली न्यूक्लियर पोर्स. न्यूक्लियर पोर्स मीन्स व्हाट? उसके अंदर होल्स होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर. अब न्यूक्लियर पोर्स की ज़रूरत क्यों है? दे अलाउ मॉलिक्यूल्स टू मूव बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में मूवमेंट का काम कहाँ से होता है? न्यूक्लियर पोर से होता है. नाउ सी द डार्क सॉलिड कलर, पर्पल कलर, सॉलिड कलर
आई विल चेंज द कलर सो यू विल गेट द आइडिया। मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है। डार्क सॉलिड कलर का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है न्यूक्लियस के अंदर। इट इज़ न्यूक्लियोलस। इट इज़ व्हाट? इट इज़ न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। न्यूक्लियस का इंपॉर्टेंस कहाँ पर है? वो राइबोसोम्स को फॉर्म करता है। सो न्यूक्लियस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। तो न्यूक्लियस जो राइबोसोम्स फॉर्म करेगा वो कहाँ से बाहर आएंगे? दे आर कमिंग आउट फ्रॉम द न्यूक्लियर पोर। वो न्यूक्लियस से न्यूक्लियर पोर के थ्रू बाहर आएंगे। कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में। उसके बाद आपको जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, बहुत मैसी जैसा स्ट्रक्चर, दे आर द क्रोमेटिन मटेरियल और दे आर द क्रोमोसोम्स। They are the chromatin or they are the chromosomes which carries the genetic information. This is the in this image you can get the clear idea that this is our nuclear envelope or we can say the nuclear membrane. Nuclear membrane के अंदर holes हैं which are called as nuclear pore. The solid structure inside the nucleus which is called as nucleolus, which is also called as factory of ribosomes. Okay, now here some of the information about the chromatin material and chromosomes. What is chromatin material? That thread-like material made of DNA. What is DNA? That is deoxyribonucleic acid molecules and protein present in nucleus is known as chromatin material. So many time question asked that what is chromatin made up of? So you should have to write down the answer that chromatin is made up with the DNA and protein molecules. Second है chromosomes. Thread-like structures which are formed by the condensation of chromatin during cell division are called chromosomes. They refer are hereditary vehicles and chromosomes are same DNA and protein. So chromatin और chromosomes दोनों सेम चीज़ों से बने हुए हैं, DNA and protein. डिफरेंस क्या है दोनों के बीच का? डिफरेंस ये है कि when cell is about to divide, जब सेल अपने डिवीज़न के प्रोसेस के ऊपर होता है, मीन्स एक से सेल से दो सेल, दो से चार, चार से आठ, व्हेन सेल इज़ अबाउट टू डिवाइड, तब वो कौन से फॉर्म में होता है? एट द टाइम इट इज़ फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स. लेकिन जब सेल अपने नॉर्मल पोजीशन पे होता है तब वो क्रोमेटिन के फॉर्म में होता है. ये याद रखेंगे आप सभी दैट व्हेन सेल इज़ अबाउट टू डिवाइड इट इज़ फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स एंड व्हेन सेल इज़ ऑन इट्स नेचुरल नॉर्मल पोजीशन तब वो क्रोमेटिन के फॉर्म पर होता है. So this is all about the nucleus. Now after the nucleus, dear students, two different kind of cells you have to learn on the basis of nucleus only. ये दोनों cell अलग होते हैं, that is prokaryotic cells and eukaryotic cells. If we go with the description, that pro means primitive or we can say primary and karyotic means ऑर्गेनिजम्स. जो प्रिमिटिव ऑर्गेनाइजेशन होता है सेल का, दे पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल. ये डिफरेंस आपकी टेक्स्ट बुक से ही लिया है मैंने. साइज़ जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल का वो बहुत स्मॉल होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल का साइज़ कैसा होता है? लार्ज साइज़ होता है. अब मेन डिफरेंस क्या है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का? कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है. नाउ व्हाट डू मीन बाय वेल डिफाइंड न्यूक्लियस? कि उनका जो न्यूक्लियस होता है उनके सराउंडिंग में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है. अभी हमने देखा व्हेन वी वर लर्निंग दी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, जब हम पढ़ रहे थे जो न्यूक्लियर हमने पढ़ा कि उसके सराउंडिंग में एक कवर होता है दैट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के सराउंडिंग में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है. सो वी कैन से दैट नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. Whereas in eukaryotic cell, well-defined nucleus is present as it is surrounded by the nuclear membrane. थर्ड डिफरेंस है क्रोमोसोम कैसा होता है? सिंगल. प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्रोमोसोम सिंगल होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर मोर देन वन क्रोमोसोम होते हैं. फॉर एग्जांपल वी आर द ह्यूमन बींग्स एंड इन आवर सेल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट. द फोर्थ डिफरेंस है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स के बारे में. तो वो सेल ऑर्गेनल्स क्या है? मेम्ब्रेन उनके भी ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होता है. किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर. whereas eukaryotic cell has the membrane bound cell organelles are present. So this is all about the information about the nucleus. So in today's lecture, dear students, we had completed the cell wall and the nucleus. In next video we will discuss about the cell organelles.